آج جو ٹاپک ہے مدرسہ ایجوکیشن پر، مدارس کے بارے میں تمہیدی گفتگو ہوئی۔ ملت اسلامیہ کے لیے یہ مدارس ایک نعمت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسے ہم کم نہ سمجھیں۔ یہ مدارس اسلامیہ، یہ مدارس جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام کے لیے پاور ہاؤس کا کام کرتی ہیں۔ ہم ہندوستان میں جیتے ہیں، یہاں جو مدرسے کا نظام چلا، تمام طرح کی تعلیمیں دی جانے لگی اور سبھی نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ انگریزوں کے تسلط کے بعد جو حالات سامنے آئے تو ہمارے دانشوروں کو یہ فکر ہوئی کہ ہمیں اپنے مذہب سے دور رکھنے کی یہ کوششیں کی جا رہی ہے۔ یہ انگریزی اسکول کھولے جا رہے ہیں، اس لیے بہت سارے ہمارے علماء کرام اور دانشوروں نے مدرسوں کو اسلامی تعلیم کے لیے خاص کیا۔ اس کا فائدہ بھی ہوا۔ مدارس کی ضرورت کل بھی تھی، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی۔ اس کی ضرورت کبھی کم نہیں ہوگی۔ ہاں، ہم مبارکباد دیتے ہیں جناب عبدالقدیر صاحب کو، جو دور رس نگاہ رکھتے ہیں۔ عبدالقدیر صاحب، آپ کے لیے ہی ہم نے یہ کہا ہے، نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز، یہی ہے رختے سفر میرے کارواں کے لیے۔ یہ مشن 2047، ویژن 2047 کیا ہے؟ یورپ میں امریکہ، انگلینڈ، فرانس، پیرس، جاپان، جرمنی، کینیڈا، یہ سب ڈیولپڈ کہلاتے ہیں۔ تو ہندوستان کا بھی یہ سنکلپ ہے، یہ عزم ہے کہ ہم 2047 آزادی کے 100 سال پورے ہونے پر ہم ڈیولپڈ کہلائیں گے۔ ہمارے پاس پورے انفراسٹرکچر ہوں گے، ہماری سڑکیں ہوں گی، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن ان کی نظر اس پر گئی کہ اس وقت مسلمانوں کا ویژن کیا ہوگا، اس کی تیاری ہم کیسے کریں۔ ہم آنے والے بچے جو ہمارے لیے کوہ نور سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، اس کی آبیاری اور اس کی پرورش، اس کی پرداخت کس طرح سے کی جائے، کس ماحول میں کی جائے، اس کے لیے پورے ہندوستان سے، تمام ہندوستان کے باہر سے انٹلیکچوئلس کو یہاں بلایا ہے اور اس سے یہ ویژن لے کر جمع کر رہے ہیں، ایک پیغام کتاب کے طور پر جمع کر رہے ہیں، اور یہ ایک ویژن جاری ہوگا۔ ان کے ویژن سے تو پتہ یہی چلتا ہے کہ ان کی نظر مدرسوں میں پڑھنے والے حافظوں پر گئی کہ حفاظ کرام کا ہونا ہمارے یہاں بہت ضروری ہے، شریعت کے جاننے والے عالم دین کا ہونا بہت ضروری ہے، فقہ کو سمجھانے پڑھانے والوں کی ضرورت ہے، لیکن ضرورت کے مطابق، وقت کے تقاضے کے مطابق ہمیں اس طرف کچھ اور بھی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے 400 سال پہلے اقرا کے حکم کے بعد سے 1000 سال تک ہم نے، مسلمانوں نے اور عربوں نے، اسلام مذہب نے اقرا کے حکم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم کی روشنی میں پورے دنیا میں علم پھیلایا، اور پوری دنیا نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ پوری دنیا نے جانا کہ یہ میڈیکل سائنس کیا ہے، دنیا نے یہ جانا کہ یہ کیمسٹری کیا ہے، دنیا نے جانا کہ یہ الجبرا کیا ہے، دنیا نے یہ جانا کہ یہ میتھس کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد سے ہماری تھوڑی جو غفلت ہوئی، یہ سب کے انوینشن، سب کے انوینٹر اور سب کے ایجاد کرنے والے یہی مسلمان تھے، اور تمام مخطوطات کو اٹھا کر یورپ لے گئے۔ 10 لاکھ عربی مخطوطات تھے جس کو اٹھا کر لے گئے، اور جرمنی، فرانس اور انگلینڈ کی لائبریری
आज जो इम्पोर्टेंट है उसी मखतूतात की वजह से है। 1 लाख मखतूते का उन्होंने ट्रांसलेशन किया और आज मेडिकल साइंस को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी इलाज, अंग्रेजी दवा, अंग्रेजी दवाई, जबकि वो इसी इस्लाम मज़हब की देन है। हम उससे गाफिल हुए तो हमारा ये नतीजा पहुंचा कि आज हम उस इन्वेंशन में शामिल नहीं हैं, जबकि ये एआई का ज़माना है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो हमें भी उसमें शामिल होना है, शाना बरशाना शामिल होना है। हमें अपने मदरसों से ऐसे प्रोडक्ट पैदा करने हैं जो पूरी दुनिया समझे, चाहे हम हाफिज हों या हम आलिम हों, लेकिन खिदमत करने वाले हों। हमारे किरदार से, हमारे अफ़ाल से ये पता चलना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। हमें वो गैर मुस्लिम आपकी किताब को नहीं पढ़ते, आपकी किताबों का मुताला नहीं करते कि इस्लाम क्या है, वो हम में तलाश करते हैं कि इसमें इस्लाम कितना है। तो इसलिए हमें उस रोशनी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है जो हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया था, और अल्लाह की तरफ से उनको हुक्म हुआ था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। और जब इस पर ये इक़रा की पैरवी करने वाले, इक़रा की मिल्लत कहलाने वाले, हमें अफसोस है कि आज हम नाखादगी के शिकार क्यों हैं। जनूबी हिंद की हालत बेकदरे बेहतर है। यहाँ अब्दुल कदीर साहब की तरह से बहुत से पहले से भी लोगों की नज़र गई, और केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, हैदराबाद, इन लोगों के बाशऊर दानिश्वरों ने तालीम की तरफ तवज्जो दी, और आज कहीं 100% तालीम है, कहीं लोग पूरी दुनिया में खिदमत के लिए तैयार हैं, हॉस्पिटल्स में लोग मिल जाते हैं। लेकिन शुमाली हिंद, ख़ास तौर से बिहार और यूपी का कुछ हिस्सा, इस तरफ कम तवज्जो हुई। जो इनकलाब आया तालीम का, उससे लोगों ने कम फ़ायदा उठाया। तो हमें इस मदरसे हुए, वहाँ शुमाली बिहार में मदरसे हुए, शुमाली हिंदुस्तान में मदरसे कायम हुए, तो उन मदरसों में पढ़ते कौन हैं? हमारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जिनका वालिदैन की इस्तिताअत नहीं होती है कि वो स्कूल की फ़ीस अदा कर सके, वो मदरसों में भेजते हैं। अब्दुल कदीर साहब ने ये प्रोग्राम शुरू करके ये बता दिया कि इनका हाफिज बनना बेकार नहीं है। ये आज आपके सामने जो पेश किया कि एक वालिद के 6 फर्जंद और 6 फर्जंद हाफिज हो करके आप ही की यहाँ से आपकी सरपरस्ती में मेडिकल कम्पीट किया और मेडिकल कम्पीट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें भी मुबारकबाद, अब्दुल कदीर साहब को भी मुबारकबाद। हम लोग बिहार में ये कुछ मदारिस हैं, कुछ बोर्ड्स हैं सर, जहाँ उत्तर प्रदेश में बोर्ड है, बिहार में बोर्ड है, बंगाल में बोर्ड है, उड़ीसा में बोर्ड है, जहाँ की डिग्री को सरकारी स्कूल के डिग्री के बराबर उसको माना जाता है। तो उस बोर्ड में सरकार तनख्वाहें देती है, लेकिन उसकी मुदाखलत भी होती ही रहती है। और उसका नज़रिया है, अभी मदरसा मॉडर्नाइजेशन सिलेबस के लिए बिहार सरकार में एक कमेटी बनाई गई और उसका भी चेयरमैन मुझे बनाया गया। मदरसा मॉडर्नाइजेशन का बहुत से आलिम भी हमारे साथ थे, बहुत से गैर मुस्लिम भी उस कमेटी में थे। हम लोगों ने मुतालिया किया, पूरे हिंदुस्तान के मदारिसों का उस स्टडी किया। तो ये बात हम लोगों ने रखी सामने कि अपना जो दीनी तालीम मकसद है, बुनियादी मकसद है मदरसों का, उस पर कोई आँच ना आए। और उसके साथ साथ जिस तरह से शाहीन का मकसद है कि हम हिफ्ज़ प्लस प्रोग्राम से और हिफ्ज़ुल प्लस से, मदरसा प्लस प्रोग्राम से एक इनकलाब लाएं, उस तरह से बिहार मदरसा बोर्ड का एजुकेशन बोर्ड का सिलेबस भी बिल्कुल बैलेंस्ड है, जिसमें कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, तफ़सीर और उसके साथ साथ हम लोगों ने वहाँ किताबें प्रेस्क्राइब की है
क्लास 6 से लेकर मौलवी तक की क्लासों में अगर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या सोशल साइंस की जो किताबें हैं, अंग्रेज़ी की किताबें हैं, तो जो एनसीईआरटी की किताब है वही एनसीईआरटी की किताब जो सीबीएसई में पढ़ाई जाती है उसी किताब को शामिल किया गया है। इस तरीके से हर तरफ से कोशिश करने की ज़रूरत है, हर लोगों को कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी तरीके से अच्छा ठीक है, हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं जनाब अब्दुल कदीर साहब का, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का, आप तमाम लोगों का, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला बढ़ता रहेगा और ये पैगाम जाएगा कि 2047 के लायक बनने के लिए एक एक फ़र्द को तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। तालीम, तालीम और तालीम, तालीम तालीम ही हमारी ज़रूरत को और तमाम बिज़नेस और मसाइल और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की तमाम कमी को सिर्फ तालीम ही मुकम्मल कर सकते हैं। तालीम होनी चाहिए। इसी के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला तमाम लोगों को ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ कि हम 2047 में उस मयार पर हासिल हो कि सारे लोग कहें कि मदरसे भी तरक्की याफ्ता हैं, हम भी तरक्की याफ्ता हैं। यकीन महकम अमल पे हम, मोहब्बत फ़ातिह आलम, जहाद ज़िंदगानी में है मर्दों की शमशीरें। शुक्रिया।